Hello students, I am going to start a new chapter, The Age of the Guptas, chapter number 6. In this chapter, we will study literary sources and archaeological sources of this Gupta period, then origin of Gupta dynasty, administration, people and society in Gupta period, progress in education, progress in science, progress in literature, progress in architecture and painting. In the period between the end of the Koshana rule in the 3rd century AD and the beginning of Gupta reign in the 4th century AD, there existed a number of monarchies and republics. Some of the important monarchies were Nagas, Ayodhya, Kaushambi, Ahichatra and Vakatakas, and the Mukharis and the Guptas themselves. तो ये सारी monarchies उस टाइम चल रही थी. The republics included those of the Malwas, Arjunyas, Yodhyas, Sibis, Khulutas, Adambras and Kunindas. It goes to the credit of Guptas that they were able to defeat the others. ये गुप्ता को क्रेडिट जाता है कि इन लोगों ने गुप्ता ने अदर्स को डिफीट किया एंड दे गुप्ता सेटअप अ फ्लरिशिंग एम्पायर. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें पता कैसे चलता है ये गुप्ता पीरियड के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटरेरी सोर्सेस. फाहीन फोकोकी. फोकोकी इज अ बुक. Fahin was a Chinese traveler who came during the time of Chandragupta II Vikramaditya in AD 399 by land and left India from Tamralipta port in Bengal in AD 411, visiting Ceylon, Malaya and Java on the way back. Main aim of coming to India, his main aim, वो क्यों इंडिया आए थे? Fahin came to India was to get the Buddhist books of discipline which were unavailable in China. चाइना में बुद्धिस्ट डिसिप्लिन के बारे में नहीं था तो उनको इंडिया से नॉलेज चाहिए थी. He learned to read and write in Sanskrit. He traveled to all places of Buddhist interest starting from Gandhara, Kabul and Peshawar to Vaishali, Nalanda, Kapilavastu, Shravasti, Kannauj, Kushinagar, Rajgriha and Bodh Gaya. He has written a wonderful account of his travel. जहाँ जहाँ वो ट्रैवल किए, जहाँ जहाँ वो गए, सारे बुद्धिस्ट एरियाज में गए, गंधारा से लेके बोध गया तक. संस्कृत भी सीखा उन्होंने, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं संस्कृत लैंग्वेज को, और वो सब कुछ उन्होंने अपनी एक बुक में फोको की इस नेम की बुक है, उसमें उन्होंने सारी अपनी यादें लिखी हैं. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. First one is Allahabad pillar inscription. The Allahabad pillar inscription is the main source of our information regarding Samudraguptas. Samudraguptas के conquest के बारे में हमें सबसे ज़्यादा knowledge हमें जो मिलती है वो Allahabad pillar inscription से मिलती है. It is also referred to as Prasasti. It was composed by Harisena, the general and the foreign minister of Samudragupta as well as his court poet. कोर्ट पोएट हरिसेना फॉरेन मिनिस्टर भी थे समुद्रगुप्ता के. तो इन्होंने नाम दिया प्रशस्ति का. दिस प्रशस्ति और पोएम ऑफ प्रेज वॉज इंग्रेव्ड. और ये प्रशस्ति जो है ये अशोकन पिलर जो इलाहाबाद में है उसमें इंग्रेव्ड कराया है, उसमें लिखवाया है. और उसी पोएम में समुद्रगुप्ता की जितनी भी कॉन्क्वेस्ट है, जितना भी कुछ उन्होंने जीता है, वो सब उसी पोएम के थ्रू, प्रशस्ति के थ्रू उसमें अशोकन पिलर में लिखा हुआ है. This Prasasti clearly mentions that Chandragupta I selected Samudragupta as his worthy successor. ये जो इलाहाबाद आयरन पिलर है, इस पिलर में साफ इंग्रेव्ड है, इसकी जो प्रशस्ति पोयम है, इससे मेंशन होता है कि चंद्रगुप्ता I ने समुद्रगुप्ता को ही अपना एक वर्दी, एक सक्सेसफुल सक्सेसर माना था. समुद्रगुप्ता is said to have followed the policy of दिग्विजय. दिग्विजय उन्होंने पॉलिसी फॉलो करी है इन नॉर्दर्न इंडिया. ही डिफीटेड 9 रूलर्स एंड एनेक्स देयर टेरिटरीज. इन द साउथ ही टुक अप द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय. साउथ में उन्होंने धर्म विजय पॉलिसी फॉलो करी है. ही वॉन ओवर 12 किंग्स. दीज किंग्स कंटिन्यू टू रूल देयर ओन किंगडम आफ्टर एक्सेप्टिंग समुद्रगुप्ता सोवरेन पावर. They became the tributary states of the Gupta Empire. तो ये जो 12 किंगडम्स हैं, इन्होंने जो कंटिन्यू किया है अपना किंगडम समुद्रगुप्ता की सोवरेन पावर को एक्सेप्ट करने के बाद, ये सारे किंगडम गुप्ता एम्पायर के ही ट्रिब्यूटरी स्टेट्स बन गए.
We come to know the frontier states, both in the east and the west, submitted to Samudragupta, obeyed his orders, paid taxes. लोग मतलब उनके orders को मानते हैं, उनको respect देते हैं, taxes pay करते हैं. Even some foreign states like Ceylon entered into relationship with him. सिलोन का तो कुछ रिलेशनशिप भी समुद्रगुप्ता के साथ रहा है, तो फॉरेन स्टेट्स के साथ भी इनका बिहेवियर अच्छा था. ओरिजिन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कहां से आया ये गुप्ता डायनेस्टी? नॉट मच इज नोन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज. बस इतना पता है कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. फिर उनके बेटे महाराजा घटोत्कच इन्होंने सक्सीड किया. फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया, जो ज्यादा डायनेस्टी बहुत फ्लरिश करी चंद्रगुप्त वन के टाइम से. फिर रियल फेम जो आया चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त, है ना. समुद्रगुप्ता वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन. तो समुद्रगुप्ता से ज्यादा और फ्लरिश हो गया गुप्ता डायनेस्टी, और एक्सपैंड हो गया, है ना. देन ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा रूलर, वो है चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य का जो जिनको टाइटल मिला है. इन्होंने डायनेस्टी को, गुप्ता डायनेस्टी को और एक्सपैंड किया और फ्लरिश किया, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, मेथोडोलॉजी हो, एजुकेशन हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो. तो चंद्रगुप्त टू के टाइम गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड. अमंग द लेटर गुप्तास, टू नोटेबल वंस आर कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता. चंद्रगुप्त टू, दैट इज विक्रमादित्य, इनके बाद दो और गुप्ता भी आए, कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता, लेकिन उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई. चंद्रगुप्त वन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट चंद्रगुप्त वन, who was the father of Samudragupta. Chandragupta I probably ascended the throne in AD 320. He described it as Maharaja Dhiraja. महाराजा धीराजा बोलते थे चंद्रगुप्त वन को. उनकी मैरिज हुई कुमारदुर्ग के साथ, है ना, लिच्छावी प्रिंसेस, जो लिच्छावी की प्रिंसेस थी. पॉलिटिकली चंद्रगुप्त वन को फायदा मिला. ही वॉज एबल टू गेन कंट्रोल. इससे उनको क्या हुआ कि मगध मिल गया, अयोध्या मिल गया. पहले जमाने में क्या होता था चिल्ड्रन, कि राजा लोग जो होते थे वो प्रिंसेस से शादी करते थे, और प्रिंसेस से शादी करके वो एरिया जहां की वो प्रिंसेस होती थी, वो एरिया भी उनके अंडर में आ जाता था. तो मगध मिल गया, प्रयाग मिल गया, अयोध्या मिल गया, एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ बंगाल भी मिल गया. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्ता. फिर आफ्टर चंद्रगुप्त वन समुद्रगुप्ता आ गए. समुद्रगुप्ता वॉज अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज. आई मीन टू से कि समुद्रगुप्ता के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी. ही कन्वर्टेड अ स्मॉल किंगडम इनटू अ लार्ज इंडियन एम्पायर कवरिंग मेनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया. तो स्मॉल किंगडम को उन्होंने बहुत बड़ा इंडियन एम्पायर बनाया, बहुत सारे नॉर्दर्न सदर्न इंडिया टेरिटरीज को एनेक्स करके. ही जस्टिफाइड हिज फादर सिलेक्शन. उन्होंने प्रूफ कर दिया, समुद्रगुप्ता ने प्रूफ कर दिया अपने फादर के सिलेक्शन को, मतलब कि उन्होंने जो विश्वास किया एज अ फादर, चंद्रगुप्त वन ने जो अपने सन के ऊपर विश्वास किया कि वो गुप्ता एम्पायर को फ्लरिश करेंगे. समुद्रगुप्ता हैज प्रूव्ड दिस एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एशियंट इंडिया, इफ नॉट ऑफ द वर्ल्ड. ही वॉज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन. इंडियन नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्ता को जाना जाता था. His conquest, his achievements as a conqueror and a ruler are recorded in detail by his court poet Harisena in the Allahabad pillar inscription as Praशस्ति. हरिसेना जो उनके कोर्ट पोएट थे, फॉरेन रूलर थे, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उनकी सारी एज अ कॉन्करर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इंग्रेव्ड कराया है हरिसेना ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में. इन नॉर्दर्न इंडिया ही टुक अप द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, है ना. ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ आर्यवर्ता एंड एनेक्स्ड देयर किंगडम्स. He defeated rulers. The defeated rulers included Rudradev of Kaushambi, Mathila of Western UP, Nagsena of Padmavati, Achyuta of Achyutara and Ganpati Naga of Mathura. इन सबको इन्होंने हराया है. Nandi of Middle Kingdom, Chandravarman of Pushkarna and identified Balavaram man probably of Assam. He also annexed the Kota Kingdom. कोटा किंगडम को भी उन्होंने हराया. अत्विका राज्य फॉरेस्ट किंगडम फ्रॉम गाजीपुर इन यूपी टू जबलपुर इन एमपी, ये सब भी उन्होंने एनेक्स किया. जैसे जैसे वो साउथ गए, ही कैप्चर्ड एंड सेट फ्री एटलीस्ट 12 रूलर्स
He followed the policy of Dharma Vijay in South region. It meant Dharma Vijay मतलब defeat करो, enemy को imprison करो, then set him, फिर उनको free कर दो और उनका kingdom वापस कर दो. Samudragupta became their sovereign. He was free. They were reduced to tributary states. Many scholars praise, बहुत scholars ने इस तरह जो ये धर्म विजय जो follow करते थे ये समुद्रगुप्ता, बहुत scholars ने praise किया इस policy को. As it was difficult to rule from distant Patliputra, Samudragupta preferred the vassal states in the south. Deccan rulers who became the vassal states were Mahendra of Kosala, Mahendra of Pistapura, Swami Datta of Kotura, Vishnu Gopa of Kachi, Ugrasena of Palaka, and Kuvaka of Devashastra, Daman of Irandapala, Nilaraja of Avamutta, and Hastivaraman of Vengi. ये सारे डेक्कन रूलर्स थे जो वैसल स्टेट्स बन गए जहां से वो साउथ से रूल करते थे. Because Patliputra was far, so it was difficult to rule for him. The king of the frontier states, both in the east and in the west, agreed to pay all taxes, obey his orders, and show him respect. समुद्रगुप्ता को काफी respect मिलती थी. The eastern states included Samatata, Kamarupa, Davaka, and Kataripur and Nepal. ये ईस्टर्न स्टेट्स के नाम हैं. वेस्टर्न स्टेट्स वर द रिपब्लिक्स ऑफ द मालवास, अर्जुनियानास, योध्यास, मद्रिकास, अभिरस, प्रारजुनास एंड काकास. These were the western states. Neighboring kingdoms hurried to have peace and friendship with the mighty समुद्रगुप्ता. जो neighboring kingdoms थे, जो आसपास के kingdoms थे, वो चाहते थे कि समुद्रगुप्ता के साथ friendship हो जाए. The kings included Shri Meghavarman of Ceylon, Saka rulers of Punjab, Kidra Koshanas, Davaputras, the Shahis, and the Murundas. After completing his conquest, Samudragupta performed the Ashwamedha Yagya. Ashwamedha Yagya उन्होंने कराया. Horse sacrifice जिसको हम लोग कहते हैं. Gold coins were struck for the event and distributed among the Brahmins. Gold coins stop हो गए और Brahmins को distribute कर दिए गए उस दिन. Coins had a figure of a horse. उस coin में देखिए horse का figure to be sacrificed. Horse का figure था जो वो sacrifice कर रहे हैं before an altar. This is a coin Queen Kumara Devi and King Chandragupta I depicted on a coin of their son. इसमें King Kumara Devi और चंद्रगुप्त I की इमेज बनी है इस coin में. समुद्रगुप्ता's empire extended over the whole of north. तो समुद्रगुप्ता का जो empire था वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग मॉडर्न वेस्ट, बंगाल, कश्मीर, वेस्टर्न राजस्थान, सिंध, गुजरात, पूरी जगह फैल चुका था. इन द साउथ इट इंक्लूडेड छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा अप टू चिंगलपुट इन मॉडर्न तमिलनाडु. हिज कॉन्क्वेस्ट अर्नड हिम द टाइटल. एक के बाद इन्होंने जो टेरिटरीज एनेक्स करी है, इनकी कॉन्क्वेस्ट की वजह से इनको टाइटल मिला इंडियन नेपोलियन. आफ्टर द अश्वमेध यज्ञ के बाद, अश्वमेध सैक्रिफाइस के बाद इनको एक और टाइटल मिल गया अश्वमेधा पराक्रमण का. हिज पर्सनल अटेनमेंट्स. द एम्परर वॉज अ टैलेंटेड जीनियस. समुद्रगुप्ता एक टैलेंटेड जीनियस मैन थे. हिज पोएम्स अर्नड हिम द टाइटल कविराज. इनकी कविता, इनकी पोएम से इनको एक और टाइटल मिला कविराज के नाम से. हिज म्यूजिकल स्किल इज अटेस्टेड बाय सेवरल कॉइन्स विच शो हिम प्लेइंग द वीणा. म्यूजिकल स्किल्स हैं वो कई कॉइन्स में दर्शाई गई है, कई कॉइन्स में इंग्रेव्ड हुई है, जिससे पता चलता है कि वो वीणा भी बजाते थे. और ये कॉइन में आपको दिखाया जा रहा है कि समुद्रगुप्ता वॉज प्लेइंग वीणा, दैट इज ल्यूट. He was well versed in Hindu religious text. He enjoyed the company of learned men. Though a Hindu and worshipper of Lord Vishnu, he was tolerant towards other religion as well. Samudragupta was extremely kind to people. बहुत ही kind man थे. Like Akbar in the later times, Samudragupta forgave those who submitted
to him. He restored the kingdoms to the defeated. हारे हुए kingdoms को वो वापस दे देते थे. मतलब कि जो kingdoms हार गए हैं, मतलब जो kingdoms उन्होंने जीत लिया है, defeat कर दिया है, तब भी वो राजा को उनका kingdom वापस कर देते थे. After defeating, he was the symbol of hope and kindness to the poor. Poor people loved them. The helpless and diseased people के लिए भी hope थी वो. समुद्रगुप्ता जैसा कोई भी talented आज तक नहीं आया. He is described as the giver of cows and coins. उनको बोला जाता था कि दानी है वो काउस, ढेर सारी गाय को, कॉइन्स को वो देते थे लोगों को. द कॉन्करर ऑफ मेनी किंग्स, बहुत सारे राजा को उन्होंने हराया है बिना किसी राइवल के. हुज नेम स्प्रेड as far as 4 oceans. He ushered in a new age in Indian history. Indian history में उनका एक नया दौर था. He was inspired by the idea of all India empire. उनका एक आइडिया था ना, ऑल इंडिया एम्पायर, मतलब पूरा इंडिया उनको चाहिए उनके एम्पायर पे. टू इंश्योर इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, अपने अंदर पीस एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल अथॉरिटी सेटअप करी थी. ही चेक्ड द डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसीज ऑफ द स्मॉल स्टेट्स एंड बिकेम कॉन्सिलेटरी टूवर्ड्स द फ्रंटियर स्टेट्स. हमेशा वो चेक करते थे जो डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसीज होती हैं छोटे छोटे स्टेट्स की, और उनको फ्रंटियर स्टेट्स बनाती थी. Now in the next video, I'll discuss Chandragupta to Vikramaditya and administration in Gupta period.